Students, how are you? This is Pinky Yadav, English teacher from SD Senior Secondary School, Kakrala. As we know, due to Corona, our country has locked down for 21 days. So, our school management has taken a decision to provide online classes for you. So, dear student, our first lesson is The Best Christmas Present in the World, written by Michael Moore Purgo. So, the main character of this lesson, Jim Macpherson, British Army leader. Second, Connie, wife of Macpherson. The Best Christmas Present in the World, written by Michael Moore Purgo. In this lesson, we will read a story about the writer found a roll-top desk in the Bridgeport. When he opened the roll-top desk, he found a letter in it. The letter is very important. The letter was written by Jim Macpherson to his wife Connie. Macpherson wrote in the letter about wonderful things. The English army wished them a Merry Christmas. Soon the both army met at the On Man's Land. After that, author decided to give this letter to Jim's wife. On reaching the place, he found that Macpherson's house had caught fire and his wife was in nursing home. She declared him to be the best Christmas present in the world. Let's our lesson start. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date or event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? तो संसार की हिस्ट्री में डेट और समय की अवधि इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक को याद है, प्रत्येक उनके बारे में जानता है. जो स्टोरी जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ डेट और इवेंट मेंशन किए गए हैं. 1914 में ब्रिटिश और जर्मनी के बीच में एक युद्ध. क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये कौन सा युद्ध था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हैं कि नीचे जो डेट दी गई है इनसे कौन सा जो युद्ध था, इवेंट था, वो बिलोंग करता है? सो फर्स्ट 4 जुलाई 1776. 4 जुलाई 1776 अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे. सेकेंड 17 दिसंबर 1903 Wilbur and Orleans Wright made the British flight remaining in the air for 12 seconds and covering 120 feet. Third, 6th August 1945. On this day, atomic bomb was dropped on Hiroshima in Japan. Next, 30 January 1948. Assassinations of Mahatma Gandhi. Assassination means वध करना, हत्या करना. 12 April 1961. Yuri Gagarin became the first woman to orbit the Earth. Next, 20 July 1969. Neil Armstrong became the first woman to set foot on the moon. So, let's start our lesson. I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll-top desk. नरेटर को ब्रिजपोर्ट में एक शॉप पर एक रोल टॉप डेस्क मिलता है. रोल टॉप डेस्क मीन्स एक ऐसा टेबल जिसमें ड्रॉवर होता है. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक. उस शॉपकीपर ने बताया कि यह 19th century में बनाया गया था, जो कि ओक की लकड़ी का बना हुआ था.
I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsy, mended, scorch marks all down one side. नरेटर कहता है आई हैड वॉन्टेड वन, मैं एक प्राप्त करना चाहता था परंतु वह बहुत ही महंगा था। उनमें से एक की कंडीशन बहुत ही खराब थी, रोल टॉप के बहुत सारे टुकड़े हो रहे थे, वन लेग क्लमजी मैंडेड, और उसकी एक जो लेग थी वो भद्दे तरीके से, मैंडेड मीन्स रिपेयर की गई थी, क्लमजी मीन्स भद्दे तरीके से, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड से जले हुए के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर लिटिल मनी, यह बहुत ही कम पैसे में आ रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, यह मेरे लिए एक रिस्क होगा, एक चैलेंज होगा, परंतु मुझे इसे प्राप्त करना था। आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने आदमी को पे किया और अपने गैरेज के पीछे अपने वर्क रूम में लेके गया। मैंने क्रिसमस की संध्या पर मैंने इस पे काम शुरू किया। आई रिमूव द रोप टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रावर, मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से रिमूव किया, अच्छी तरह से, एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और ड्रावर को खींचा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनीर होता है जो फर्नीचर के ऊपर जो एक पतली परत चढ़ाई जाती है, तो द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो रोल टॉप डेस्क की जो विनीर थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, उखड़ी हुई थी। It looked like damage to water me. Both fire and water has clearly taken their toll on this desk. वाटर और अग्नि ने इसे पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, और अंतिम जो ड्रॉवर थी वो बहुत ही टाइट थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने इसे आराम से निकालने की पूरी कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने मजबूत ताकत का यूज किया। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to several a shallow space underneath a secret drawer. और मैंने एक साइड से अपने मुक्के से इस ड्रॉवर को खोला। ड्रॉवर खुलती है और उसके नीचे बहुत सारा खुला स्पेस होता है, ए सीक्रेट ड्रॉवर, और उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर निकलती है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं वहां तक गया, मैंने अपना हाथ वहां तक पहुंचाया, एंड टुक आउट ए small black tin box, sellotape to the top. If it was a piece of lined notepaper written on it in shaky handwriting. मैंने अपना हाथ ड्रॉवर में पहुंचाया और एक छोटा ब्लैक कलर का बॉक्स निकाला जिसके ऊपर टेप लगी हुई और नोट टेप लगी हुई लाइनों में कुछ लिखा हुआ है। रिटन ऑन इट इन ए शैकी हैंडराइटिंग, हिलते हुए हाथों से लिखा गया। जिम्स लास्ट लेटर, क्या लिखा गया? जिम का लास्ट अंतिम लेटर, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और नरेटर को वो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम्स कम, और नरेटर कहता है कि जब मेरा अंतिम टाइम आए तो इसे मेरे साथ जला देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग of me to open the box, but the curiosity got to the better of my scruples. It usually done. मैं जानता था कि यदि मैं इसको खोलता हूं तो वो मेरे लिए बहुत ही गलत होता है, परंतु मेरी क्यूरियोसिटी ने, मेरी जिज्ञासा ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और मैं इसको खोलता हूं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और बॉक्स के अंदर एक एनवेलप मिलता है। द एड्रेस रेड, और इसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा है? मिसिज जिम मैकफेसन, 12 कॉपर बीचीज, ब्रिजपोर्ट, डोरसेट। कि मिसिज जिम मैकफेसन, और ये मिसिज जिम मैकफेसन का एड्रेस है जो कि लंदन में है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा गया था, एंड डेटेड एट द टॉप, और ऊपर डेट मेंशन की हुई थी। डेट क्या थी?
दिसंबर 26 1914, ये 26 दिसंबर 1914 को ये लेटर लिखा गया था। तो डियर स्टूडेंट, you have to make 10 questions of this lesson. Thanks. Have a nice day.